جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بیٹا باقاعدہ انسانوں کے دفتر میں ملازمت کرتا ہے۔ اس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اس کی باتیں ایسی تھیں کہ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بوڑھے نے شاید میری بے چینی بھانپ لی، اس لیے اس نے مسکراتے ہوئے درخت کی جانب دیکھا اور آواز لگائی، تم لوگ بھی آ جاؤ۔ یہ نور الدین فتح صاحب ہمارے وجود پر یقین نہیں کر رہے۔ پھر اسی وقت اس درخت سے لوگ نمودار ہونے لگے، عورتیں، مرد، بچے۔ میں حیرت کی اس انتہا پر تھا کہ جہاں سکتے کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر بوڑھے نے آہستہ آہستہ اپنی باتوں سے میرا خوف ختم کر دیا اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے خاندان کا باقاعدہ مجھ سے تعارف بھی کروایا۔ اس وقت اس کے خاندان کا ہر فرد وہاں موجود تھا۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی کا اظہار کیا۔ 17 دسمبر کا صفحہ خالی اور صاف تھا۔ اس کے علاوہ 18، 19 اور 20 کے صفحات میں بھی کچھ نہیں لکھا تھا۔ تاہم 21 تاریخ میں چھوٹی سی تحریر لکھی ہوئی تھی، 21 دسمبر 1942۔ اب ان جنسانوں سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے۔ مجھے اب خوف یا انوکھا پن محسوس نہیں ہوتا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ گھل مل کر باتیں کرتا ہوں۔ بوڑھے آدمی سہیل اختر کی یہ خوبی پتہ چلی کہ وہ بہت اچھا شاعر ہے، اور چونکہ مجھے بھی ادب سے دلچسپی ہے اس لیے ہماری درمیان اچھی خاصی گزرنے لگی۔ میں نے صفحہ الٹا۔ 22 تاریخ کا صفحہ خالی تھا۔ میں نے اگلے صفحات پلٹنے شروع کیے۔ اس ڈائری کے سارے صفحات خالی اور بالکل صاف تھے۔ نہ جانے ایسا کیوں کرتا۔ اس کے بعد اور کچھ نہیں لکھا تھا۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا گزری ہوگی کہ اس نے ڈائری میں مزید تحریر اندراج کا سلسلہ ہی بند کر دیا۔ میں نے بھی ڈائری اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور جنسانوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ نصیر الدین نے مجھ سے جب جنسانوں کا تذکرہ کیا تھا اس وقت میں نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن ڈائری یہ بتا رہی تھی کہ جنسان نام کی کوئی تو مخلوق موجود ہے جو انسانوں کے درمیان ہی رہتی اور بستی ہے۔ اس وقت مجھے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا۔ پتہ نہیں ڈائری میں لکھی ہوئی باتوں میں کہاں تک اصلیت تھی، لیکن نفسیاتی اثر تو ہونا ہی تھا، اور وہ نفسیاتی اثر یہ ہوا کہ دیر تک مجھے نیند نہیں آ سکی۔ میں جاگتا رہا تھا۔ پھر نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگی اور میں نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ کچھ پتہ نہیں صبح دیر سے بیدار ہوا۔ اسی وقت خود کو ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہا تھا۔ نہا دھو کر باہر آیا تو نصیر الدین ناشتے اور چائے کے ساتھ حاضر تھا۔ السلام علیکم صاحب جی۔ وعلیکم السلام۔ جواب دیتے ہوئے میں ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ نصیر الدین، یہ بتاؤ تمہیں جنسان کے بارے میں کہاں سے معلوم ہوا ہے؟ لگتا ہے صاحب جی کہ آپ نے وہ ڈائری پڑھ لی ہے۔ بات یہ ہے کہ مجھے آپ کے والد صاحب نے ہی اس ڈائری کو پڑھ کر جنسانوں کے بارے میں بتایا تھا۔ کیا اس مخلوق سے کبھی تمہاری ملاقات ہوئی؟ میری ملاقات نہیں جی، مگر ہو سکتا ہے کہ ہوئی بھی ہو۔ آپ کے والد صاحب نے بتایا تھا کہ جنسان انسانوں کے درمیان میں ہی رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جنسان ہو اور ہم اس کو شناخت نہ کر سکے ہوں، پہچان نہ سکے ہوں۔ اس ڈائری میں جس نارنگی کے درخت کا ذکر کیا ہے، کیا وہ ابھی تک موجود ہے؟ جی ہاں، وہ اسی جگہ موجود ہے۔ آپ پہلے ناشتہ کر لیجئے، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ناشتہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ میں باغ میں پہنچ گیا۔ حویلی کا باغ بھی اس حویلی کی طرح ہی شاندار اور خوبصورت تھا۔ سلیقے سے درختوں اور پھولوں کی قطاریں۔ نارنگی کا وہ درخت باغ کے گوشے میں تھا، لیکن اس درخت میں یا اس کے آس پاس کوئی علامت نہیں تھی جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس درخت میں کوئی انہونی بات موجود ہے۔ وہ ایک عام سا درخت تھا۔ میں بہت دیر تک اس درخت کی طرف دیکھتا رہا، پھر اکتا کر نصیر الدین کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس حویلی میں وقت گزرنے کا ذریعہ موجود تھا، بہت سی کتابیں جو مجھے مصروف رکھتی تھیں۔ اس دوران میں نے گھر فون کر کے دیوان صاحب کو بتا دیا تھا کہ میں کچھ دنوں کے بعد ہی آؤں گا۔ پھر میں اس کے بعد روزانہ نارنگی کے درخت کے پاس جانے لگا، لیکن مجھے کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی دی جو مجھے اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہو سکتا تھا کہ یہ ان لوگوں کا وہم ہی ہو جس نے ایک فسانہ ترتیب دیا تھا۔ However, ایک دن مجھے وہ دکھائی دے ہی گئی۔
मैं उस वक्त भी नारंगी के दरख्त के सामने खड़ा था और वो दरख्त के पीछे से बरामद हो गई। मैं उसे सख्ते के आलम में देखता ही रह गया। क्या हुस्न था कि बयान नहीं कर सकता। मतवाजन कद, दमकता हुआ रंग, खूबसूरत आंखें और होंठों पर बिखरा हुआ दिल आवेज तबस्सुम। ऐसा भरपूर हुस्न बहुत कम ही देखने में आता है। वो मुझसे चंद कदम के फासले पर आकर खड़ी हो गई। मैं खौफजदा भी था और उसका हुस्न मुझे अपनी तरफ खींच भी रहा था। एक कश्मकश सी मेरे अंदर बरपा थी। वो यकीनन जिन्सान थी। ऐसा हुस्न इंसानों में कम ही होता है। और दूसरी बात ये थी कि वो इस नारंगी के दरख्त के पीछे से आई थी। वो सवाए जिन्सान के और कोई नहीं हो सकती थी। मेरा दिल उस वक्त बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। बिला आखिर एक गैर इंसानी मखलूक मेरे सामने आ ही गई थी। क्या बात है, आप इस तरह मुझे क्या देख रहे हैं? क्या आपने पहले कभी लड़की नहीं देखी? तुम जिन्सान ही हो ना? जिन्सान? नहीं तो, मैं तो शगुफ्ता हूँ, नसीरुद्दीन की बेटी। फिर मुझे याद आ गया कि नसीरुद्दीन ने मुझे ये बताया था कि उसकी बेटी शगुफ्ता तन्हाई पसंद है। वो इस हवेली के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन मेरे ये तस्वुर में भी नहीं था कि उसकी बेटी इतनी खूबसूरत और दिलकश होगी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे क्या मालूम था कि शहर के लोग इतने बुज़दिल होते हैं। उसके लहजे की शोखी में थोड़ा सा इजाफा हो गया। क्या तुम मुझे जानती हो? हाँ, आप इस हवेली के मालिक हैं ना? आप छोटे सरकार हैं ना? बाबा बता रहे थे कि आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है। ये जगह आपको बहुत अच्छी लगी, इसलिए आप यहाँ रह रहे हैं। अब तो ये जगह और भी अच्छी हो गई है। मैंने मायने खेज नजरें उसके हसीन चेहरे पर गाड़ते हुए कहा, मैं अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया। मैं पूछ सकती हूँ कि कैसे और क्यों कर? तुम्हारी वजह से। हाँ, तुम अपने नाम की तरह बहुत ही शगुफ्ता, खूबसूरत और बेहद पुरकशिश हो। तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें बहुत नशीली हैं। उसने शर्मा कर अपनी गर्दन झुका ली। उसे शायद मुझसे ऐसी तवक्का नहीं थी कि मैं हवेली का मालिक ऐसे खुलकर बात कर दूंगा। मैं उसके करीब पहुंचा और जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके शाने पर रखा, वो यकलख्त मेरा हाथ झटकते हुए शर्मा कर भाग गई। मैं उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा के रह गया और उसी वक्त मैंने, बल्कि मेरे दिल ने एक फैसला कर लिया, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। बस यही लड़की मेरी मंजिल थी। मुझे इसके अलावा और कहीं नहीं जाना था। मैंने जो सफर किया था, उस सफर के इख्तिताम पर शगुफ्ता जैसी एक खूबसूरत और मासूम लड़की घने दरख्त की तरह खड़ी हुई थी। शगुफ्ता से ये मेरी पहली मुलाकात थी। इतनी अचानक और दिलकश मुलाकात बहुत ही कम हुआ करती होगी। मैं इधर उधर भटकता रहा हूँ। न जाने कितनी लड़कियां मेरी निगाहों के सामने से गुजरी, लेकिन शगुफ्ता ऐसी थी कि जिसने इस गर्दिश को थाम लिया था। हम उसके बाद भी मिलते रहे। वो हवेली की तरफ आ जाती थी। उसे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। अदब से दिलचस्पी थी। बातें बहुत सलीके की किया करती थी। मुझे हैरत होती थी कि एक दूर अफ्तादा गांव के माहौल में रहने के बावजूद उसने अपनी शख्सियत बहुत बावकार और दिलकश बना रखी थी। मुख्तसर ये कि एक दिन जब वो मेरे पास आई तो मैंने उससे दिल की बात कर ली। शगुफ्ता, तुम मुझे जिंदगी के इस मोड़ पर ले आई हो जहां से अब कोई रास्ता किसी तरफ भी नहीं जाता। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारी जुल्फों के साए में जिंदगी भर आराम किया जाए। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं तुम्हारे बाबा से तुम्हें हमेशा के लिए मांग लेना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप इतने बड़े आदमी हैं, आपके पास इतनी दौलत है, जायदाद है, आपको तो एक से एक बढ़कर लड़कियां मिल जाएंगी। फालतू बातें मत करो शगुफ्ता। वो सब लड़कियां तुम्हारी जैसी नहीं होंगी। ये सच है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल मुफलिस हूँ। मैंने तुमसे अगर मोहब्बत की है तो इसे तमाम जिंदगी निभाऊंगा। तुम बस अपने बाबा से मुझे बात करने की इजाजत दे दो। चले ठीक है, मेरी तरफ से इजाजत है, बात करके देख लें। वैसे क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? उसने बेइख्तियार बोलते हुए फौरन ही अपना सर इस तरह झुका लिया जैसे उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा।
मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए ऊपर उठाया तो हमारी नजरें दो चार हो गईं कि आपस में उलझ ही गईं। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार नजर आया। मैं धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुक गया। मेरे होंठ उसके होंठों में पेवस्त हो गए। उन गुलाबी पत्तियों जैसे होंठों में बड़ी मिठास थी, शीरी रस था। मैं चखने लगा और मजीद निचोड़ना चाहता था कि शगुफ्ता एकदम मुझे धकेलते हुए एक जानिब को भाग खड़ी हुई और मैं मुस्कुराती नजरों से उसे देखता ही रह गया। मैंने दूसरे दिन ही नसीरुद्दीन से इस मौजू पर बात कर ली। देखें, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मैं यहाँ इतने दिनों से हूँ, आपने मेरा मिजाज देख लिया होगा। नसीरुद्दीन कहने लगा, हाँ साहब, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ये सब बताने की क्या जरूरत है? जरूरत है इसलिए कि मैं आपकी बेटी शगुफ्ता से मिल चुका हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे, मेरा मतलब है मैं शगुफ्ता से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों के दरमियान बहुत देर तक खामोशी रही। शायद कोई पर्दा हमारे दरमियान हायल हो गया था। खुदा जाने नसीरुद्दीन क्या सोच रहा होगा, मेरे बारे में क्या ख्याल किया होगा। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपने शगुफ्ता को अपने लिए पसंद किया, नसीरुद्दीन ने कहा। लेकिन हमारे दरमियान बहुत फर्क है। मैं आपका एक मामूली सा मुलाजिम हूँ। बस प्लीज इससे आगे कुछ न कहें। मैंने नसीरुद्दीन को मजीद बोलने से मना कर दिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको मेरे रवैये से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं शगुफ्ता को हमेशा खुश रखूंगा। ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ। साहब नहीं बल्कि बेटा आजाद कहिए। उसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। नसीरुद्दीन की इस बात ने मेरी रगों में खून का दौरानिया तेज कर दिया था। मुझे तो मेरी दुनिया मिल गई थी, शगुफ्ता हासिल हो रही थी। ये सआदत भी कम ही लोगों के हिस्से में आती होगी कि उन्हें इतनी जल्दी उनका महबूब मिल जाए। पर आप हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिएगा। गरीब सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हरगिज नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। आप सिर्फ मुझे कबूल कर लें और शगुफ्ता मुझे दे दें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर नसीरुद्दीन को मेरी बात मानना पड़ी। शगुफ्ता से मेरी शादी मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ था। ये शादी गांव में ही हुई थी। असर के वक्त गांव के कुछ लोग हवेली में जमा हो गए। शगुफ्ता को भी दुल्हन बनाकर वहीं लाया गया। वहीं हमारा निकाह हुआ और इस तरह शगुफ्ता मेरी बीवी बन गई। मैंने शहर फोन करके दीवान साहब को इत्तला दे दी थी। मेरा इरादा इसी रात शहर लौट जाने का था। हालांकि होना ये चाहिए था कि मैं एक दो दिन वहीं हवेली में शगुफ्ता के साथ कयाम करता, लेकिन मैं ये चाहता था कि शगुफ्ता को लेकर शहर जाऊं। वहां दीवान साहब ने हमारे लिए हुजला अरूसी तैयार करवा लिया था। इस हवेली में शगुफ्ता के साथ रहना उसके शायान शान नहीं था। मेरी ख्वाहिश थी कि शहर की बेगमात, लड़कियां वगैरह सब जमा हों, शगुफ्ता फिर से दुल्हन बनकर उनके सामने उतरे। फिर उन्हें एहसास हो जाता कि हुस्न क्या होता है, मसनूई हुस्न और फितरी हुस्न में कितना फर्क होता है। नसीरुद्दीन ने भी ज्यादा जिद नहीं की थी। जाहिर है शगुफ्ता अब मेरी हो चुकी थी, मुझे उस पर पूरा इख्तियार था। इसलिए मैं उसी शाम शगुफ्ता को लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। वापसी रेलगाड़ी ही के जरिए हुई थी। शहर वाले मकान में जश्न का सा समा था। दीवान साहब ने मेरे कुछ अजीजों और दोस्तों को खबर कर दी थी। वो सब के सब अपनी अपनी बीवियों के साथ हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उन्होंने भी जब शगुफ्ता को देखा तो उसके हुस्न को देखकर दंग रह गए। वो अगर सितारे थे तो शगुफ्ता उनके दरमियान किसी चांद की तरह रोशन थी। सब ने मुझे दिल खोलकर मुबारकबाद दी। फिर जब रात गहरी होने लगी तो एक एक करके सब वापस चले गए। अब मैं था, शगुफ्ता थी और दिलों की धड़कनें थीं। हुजले अरूसी में पहुंचकर मैंने शगुफ्ता के सामने वो डायरी जिसे मैं अपने साथ ही ले आया था रख दी। ये क्या है? शगुफ्ता ने डायरी को देखकर दरियाफ्त किया। मैंने उसे डायरी के बारे में बताया। अब मैं इस डायरी में अपनी तरफ से कुछ लिखना चाहता हूँ। पर वो क्या? वो ये कि इस हवेली में मुझे कोई जिंसान तो नहीं मिला, अलबत्ता एक परी जरूर मिल गई है जो अब मेरी शरीक हयात है और जिसने मुझसे मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने का वादा किया है। शगुफ्ता ने शर्माकर निगाहें नीचे झुका ली। मैंने इस डायरी पर इस तारीख में वही जुमले लिख दिए जो शगुफ्ता से कहे थे।
दूसरी सुबह शगुफ्ता बिस्तर पर नहीं थी। मैं आंखें बंद करके उसके तसव्वुर में डूब गया। उसकी खुशबू अलबत्ता फैली हुई थी। मुल्हिका गुसल खाने से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। फिर जब बहुत देर हो गई तो मैंने गुसल खाने के दरवाजे पर दस्तक दी। शगुफ्ता, शगुफ्ता। अंदर खामोशी रही थी। मैंने फिर दस्तक दी और दरवाजे पर हाथ रख दिया। दरवाजा अंदर की तरफ खुलता चला गया। शगुफ्ता गुसल खाने में नहीं थी, पर नल खुला हुआ था। मैंने जल्दी से नल बंद किया और कमरे से बाहर आ गया। घर के मुलाजमीन अपने कामकाज में मसरूफ थे। मैंने उनसे शगुफ्ता के बारे में मालूम किया तो सबने लाइल्मी जाहिर कर दी। उनमें से किसी ने भी शगुफ्ता को नहीं देखा था। उनका तो यही ख्याल था कि शगुफ्ता मेरे साथ कमरे में होगी। एक रात की दुल्हन कहाँ और क्यों कर जा सकती है। मैंने पूरे मकान की तलाशी ले ली। लॉन, कॉरिडोर, गेट सब देख आया। घर के मुलाजमीन भी उसे मेरे साथ तलाश करते फिरते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। न जाने वो कहाँ चली गई थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब मुझे नींद आने लगी थी तो उस वक्त तक वो मेरे साथ मौजूद थी, लेकिन अब ख्वाब हो गई थी। क्या हुआ था उसके साथ, बिला आखिर उसकी तलाश में नाकाम होकर मैं सर पकड़कर बैठ गया। वो घर जहां गुज़िश्ता रात खुशियां रक्स कर रही थी, अब सोग में डूबा हुआ था। दरो दीवार तक चुप थे। एक वहशत सी तारी थी। एक हैरत अंगेज सवाल सबके जहनों में गर्दिश कर रहा था कि शगुफ्ता कहाँ चली गई। आखिर इतनी हसीन रात गुजारने के बाद वो कहाँ जा सकती थी। मैंने बिला आखिर मजबूर होकर अपने एक दोस्त इंस्पेक्टर अमजद को फोन करके बुलाया। इंस्पेक्टर अमजद भी गुज़िश्ता रात हमारे इस्तकबाल के लिए अपनी बीवी के हमरा आए हुए थे। मेरी उड़ी हुई रंगत और परेशानी देखकर वो खुद भी बौखला गया था। क्या हो गया है यार, खैरियत तो है? यार, तुम्हारी भाभी शगुफ्ता नहीं मिल रही। क्या कहा? भाभी नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं। अमजद भी हैरान हो गया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। यार, सुहाग रात तो बहुत खुशगवार थी। फिर हम सो गए। मैं जब सुबह उठा तो मुझे लगा वो गुसल खाने में है, लेकिन जब मैं वहां गया तो सिर्फ नल चल रहा था। शगुफ्ता गायब थी। उसके बाद हमने हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। ठहरो, मैं अपने आदमियों को तलाश पर लगा देता हूँ। तुम्हारे पास भाभी की कोई तस्वीर है? मैं कांस्टेबलों को एक नजर दिखाना चाहता हूँ ताकि भाभी जल्द दस्तयाब हो जाए। तस्वीर तो नहीं है, लेकिन हाँ, रात में हमारी शादी की वीडियो बनी थी, उसमें शगुफ्ता है। तुम्हारा फोटोग्राफर उस वीडियो की तस्वीर उतार सकता है ना? हाँ, क्यों नहीं, हो सकता है, बिल्कुल। उसने उसी वक्त फोन करके अपना फोटोग्राफर बुलवा लिया था, जबकि मैंने वीडियो वाले को तलब कर लिया। वो कैसेट साथ ही लेता आया था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं शगुफ्ता का चेहरा स्क्रीन पर देख सकूं। उसकी गुमशुदगी ने मेरे औसान खता कर दिए थे। मैंने अमजद से कहा कि वो वीसीआर में कैसेट लगा दे, लेकिन शगुफ्ता कमरे और घर की तरह इस वीडियो से भी गायब थी। जी हाँ, स्क्रीन पर उसका कोई वजूद नहीं था, बाकी सब कुछ था। आने जाने वाले लोग, ज़र्ब बर्क लिबास, औरतें, बच्चे खाना खाने के मराहिल से गुजर रहे थे। ख्वाब का वो कुर्सी जिस पर शगुफ्ता को बिठाया गया था, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर मौजूद था सवाए शगुफ्ता के। ये क्या हो गया है? भाभी कहाँ है? अमजद ने पूछा। उसके लहजे में हैरत थी। हम सब फटी फटी आंखों से स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। शगुफ्ता कहीं भी नहीं थी। वीडियो वाला कसमें खा रहा था कि रात के वक्त कैमरे में शगुफ्ता वाज़े दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो ख्वाबो ख्याल हो चुकी थी। ये ऐसी हैरत अंगेज बात थी कि इस पर यकीन करने को दिल ही नहीं चाह रहा था। इसके बावजूद यकीन इसलिए था कि ये अनहोनी हमारे सामने हो रही थी। मैं तो पागल हो जाऊंगा आजाद, मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। अचानक मेरे जहन में वो अल्फाज गर्दिश करने लगे। जिनसान, कहीं शगुफ्ता जिनसान तो नहीं? खुदा की पनाह, ये कितना भयानक और हैरत अंगेज मुअम्मा था। वो नर्मो नाजुक खूबसूरत दिलकश शगुफ्ता जो मेरी बीवी हो चुकी थी, जिसके साथ निकाह करके मैं सुहाग रात तक मना चुका था। जिनसान एक गैर इंसानी मखलूक थी। अमजद बहुत कुछ बोल रहा था।
अपनी बेपनाह हैरत का इजहार कर रहा था, लेकिन मैं कुछ भी सुनने से कासिर था। कुछ भी नहीं। मेरा दिमाग तो जैसे भग से उड़ गया था। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा और आज इस वाक़े को कई बरस गुजर चुके हैं। मैंने इस हवेली में मुस्तकिल अपनी रिहाइश कर ली है जहां शगुफ्ता से मेरी मुलाकात हुई थी। नसीरुद्दीन और उसका पूरा खानदान शायद जिंसान था। गांव वालों के कहने के मुताबिक जिस रात मेरी शगुफ्ता से शादी हुई थी, उसी रात वो लोग कहीं गायब हो गए थे। अगर वो लोग जिंसान थे तो फिर मेरी जिंदगी के साथ उन्होंने ऐसा मजाक क्यों किया? क्या जरूरत थी ये मजाक करने की? शगुफ्ता को मेरी बीवी क्यों बनाया गया? अगर वो मेरी जिंदगी में शामिल हो गई थी तो फिर चली क्यों गई? आखिर क्यों? मेरे पास इन सवालों के जवाबात नहीं है। मैं तो सिर्फ नारंगी के दरख्त को देखता रहता हूँ कि शायद कभी शगुफ्ता उसके पीछे से पहले की तरह नमूदार हो जाए, तो फिर मैं उसे कभी अपने से दूर नहीं करूंगा।